Hello, my dear student. I am Gyan Pandey. In S orbit, पिछली क्लास में I have discussed motion in straight line में uniform accelerated motion and graphs, position time, velocity time and acceleration time graph. अब इसके बाद जो हमारा next chapter है motion in a plane. In this chapter, the topic is vectors. The topic is vectors. Mainly जो topics हैं vectors, projectile motion and uniform circular motion. So there are three major topics: vectors, projectile motion and uniform circular motion. I think आप 12th पास आउट है या 12th जो भी जेई आप दे रहे होंगे या नीट, वेक्टर्स के बारे में आपको पता हो, तो वेक्टर का यूज करते हुए वी विल डिस्कस प्रोजेक्टाइल मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सो लेट अस स्टार्ट प्रोजेक्टाइल मोशन. Projectile motion. So what is the projectile motion? What is the projectile motion? When any body projected from ground make an angle theta with the horizontal angle between velocity vector and acceleration vector. If the body is projected with an angle theta angle है velocity vector and a vector, this theta cannot be 0 and 180 degree. Then in this case the path followed by the particle is a parabolic path and motion is known as projectile motion. So body is projected like this with velocity u making an angle theta with the horizontal. तो इस केस में जो बॉडी पाथ फॉलो करेगी एक प्रोजेक्टाइल मोशन, एक पैराबोलिक पाथ होगा और इस तरीके के मोशन को हम कह सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन. सो दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई. वैसे तो अगर सिंपली देखा जाए एनी बॉडी प्रोजेक्टेड एक प्रोजेक्टाइल है, लेकिन अगर हम एक्स वाई में मोशन है, जेड कंपोनेंट हम नेग्लेक्ट करें तो ये 2D मोशन होगा. सो प्रोजेक्टाइल इज ए 2D मोशन. Body is projected with velocity u. Let this is the x-axis and this is y-axis. तो u है इधर की ओर कंपोनेंट आएगा u cos थीटा and this is u sin थीटा. मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि g is continuously acting in downward direction. So this is plus I, this is minus I, plus j, minus j. तो देखा जाए प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा मैंने कहा 2D मोशन है. Body is projected from O, it reach the maximum height and strike the ground at A. तो throughout the motion G is acting downward direction, body का weight ही downward direction में act कर रहा है. and the maximum height अगर आप बात करें तो जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा और maximum height पे vertical component of the velocity becomes 0. Why it becomes 0? क्योंकि at a maximum height G मैक्सिमम हाइट पे अगर नहीं 0 हुआ होता तो पार्टिकल और हाइट तक गया होता, इसलिए एट ए मैक्सिमम हाइट वर्टिकल कंपोनेंट बिकम्स 0 और मैक्सिमम हाइट पे और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेगा u cos थीटा. अगेन पार्टिकल गोज डाउन, जब पार्टिकल स्ट्राइक करेगा, व्हेन पार्टिकल स्ट्राइक तो जितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट हुआ था सेम वेलोसिटी से पार्टिकल स्ट्राइक करेगा. बस डायरेक्शन. So it strike with velocity u, make an angle theta with the horizontal. So obviously u cos theta and this will be u sin theta. इस तरीके से. तो आप खुद देखिए अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर? इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की होगी u cos theta I cap plus u sin theta j cap. This is the initial velocity. When particle strike at A, जब पार्टिकल ए पे स्ट्राइक करेगा तो इसकी फाइनली वेलोसिटी वेक्टर हम VF लिख लेते हैं और u cos थीटा तो ऐसे ही होगा u cos थीटा आई कैप और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो ये क्या बन जाएगा u sin थीटा j कैप. माइनस साइन क्यों हुआ कि जब पार्टिकल ए पे स्ट्राइक करेगा तो उसकी वेलोसिटी कहाँ होगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन. इसलिए u sin थीटा
minus j cap. So this is the initial velocity and this is the final velocity. हमने ये देखें throughout the motion velocity in horizontal direction remains same. Why it remains same? Because there is no acceleration in horizontal direction. अगर पार्टिकल का मास m हो तो इसको मोमेंटम के टर्म्स में भी लिखा जा सकता है. जैसे एक बार एम्स के एग्ज़ाम में पूछा भी गया था. अब तो आपको पता है कि एक साथ एग्ज़ाम होना है जो नीट का. इसी में उन्होंने ये कहा, अगर मैं ऐसा कहता पार्टिकल का मास है में, particle projected from O strike at A, what is the magnitude of change in momentum vector? So first we find what is the change in momentum vector and उसका क्या निकाल लेंगे, magnitude. तो आप देखिए पार्टिकल का मास मैंने क्या कहा, m. So what is the initial momentum? Initial velocity निकाल दी तो initial momentum आ जाएगा. Initial momentum you know mass into velocity. So mass into initial velocity. ये initial momentum हो गया. When particle strike at A, then final momentum क्या होगा, final momentum होगा mass into final velocity. ये final momentum हो गया. What is the change in momentum vector? So change in momentum vector will be final momentum minus initial momentum. This minus this करेंगे, so this comes out to be m vf minus vi. Now put the value of vf यहाँ ये value है और this is the value of vi. We will put the value of vf and vi. जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपको vf माइनस दिस करेंगे तो ये दिस माइनस दिस करेंगे तो आपको पता है ये वाला टर्म्स क्या होगा, कैंसिल आउट और ये एड अप हो जाएगा और दिस कम्स आउट टू बी माइनस 2mu sin theta j cap. So this is the change in momentum vector. So what is the change in momentum vector when particle strike projected from A strike at A? So this is the change in momentum vector minus 2mu sin theta j cap. What is the magnitude of change in momentum? So take the magnitude. So magnitude of change in momentum that will be 2mu sin theta. तो आप ऐसे बिल्कुल याद रख सकते हैं. A particles projected from A strike at A, projected from A strike at A. Then what is the magnitude of change in momentum vector? What is the magnitude of change in momentum? It comes out to be 2mu sin theta. So this is the magnitude of change in momentum vector. अगर मान लेते हैं इसी क्वेश्चन में ये कहा जाता what is the angle of deviation? तो angle of deviation क्या है? पार्टिकल प्रोजेक्टेड था U से, मेक एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, स्ट्राइक हुआ A पे और अगेन हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा. व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन? एंगल ऑफ डेविएशन मतलब है एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी. स्ट्राइक A में हुआ, इस वेलोसिटी वेक्टर को यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए ऐसे. सो दिस इज द वेलोसिटी. अगेन ये हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है, थीटा. सो व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन? दैट विल बी 2 थीटा. तो एंगल ऑफ डेविएशन अगर हम देखें, सो एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा दैट विल बी क्या होगा, 2 थीटा. तो आपने इस डिस्कशन से क्या सीख लिया, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि थ्रू आउट द मोशन वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट. एट द मैक्सिमम हाइट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी बिकम्स 0 and horizontal component throughout the motion remains same. Why it will remain same? Because there is no acceleration in horizontal direction. Now एक हम बेसिक कुछ concepts लेते हैं. मैंने बताया कि a body is projected with velocity u, make an angle theta with the horizontal. So this is u, make an angle theta with the horizontal. Projected from A, strike at A. इसी में जनरल टर्म्स जो आपने सुने होंगे, व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट एंड व्हाट इज द रेंज. सो व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट? टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल गोइंग फ्रॉम O to A इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट. सो व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट? अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल T से लिखें, सो दिस कम्स आउट टू बी 2u sin थीटा बाई जी. और ये आपको पता है जो टाइम हमारा असेंडिंग का है वही टाइम डिसेंडिंग का है. मतलब जो टाइम पार्टिकल ने O से P में लिया है और सेम टाइम कैसे लगेगा P to A. तो दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट. व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल?
मैक्सिमम हाइट ये है, ग्राउंड लेवल से पार्टी, दिस इज द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल एंड व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल, एस इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g. सो दिस इज द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल. अब एक है वर्ड रेंज. तो रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज R equal to that will be u square sin 2 theta upon g. This is the range. I think ये बहुत बेसिक टर्म्स हैं. You know कि this is time of flight, this is the maximum height attained by the particle and this is the range. अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं रेंज से रिलेटेड. ये देखा गया कि थीटा एंगल पे रेंज क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. अगर थीटा की को 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट करें तो वी विल गेट सेम रेंज फॉर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. वन इज थीटा, अनदर इज क्या है 90 माइनस थीटा. दोनों पे रेंज क्या मिलेगी, सेम. जो रेंज थीटा पे है वही रेंज 90 माइनस थीटा पे. कैसे, आप थीटा है 90 माइनस थीटा पुट करेंगे, 2 को इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 180 माइनस 2 थीटा होगा. साइन 180 माइनस थीटा यू नो साइन थीटा होता है. तो सेम वे से साइन 180 माइनस 2 थीटा भी साइन 2 थीटा है. तो रेंज क्या होगी, सेम. इसका मतलब कि जो थीटा पे और 90 माइनस थीटा पे देखेंगे, अगर रेंज इसमें आर है तो 90 माइनस थीटा पे भी क्या होगी, आर. अब हम बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की. थीटा पे तो मैक्सिमम हाइट h है, तो यहाँ पे h हो जाएगी. तो यहाँ पे जो हाइट होगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, जैसा मैंने वहाँ लिखा. यहाँ 90 माइनस थीटा आएगा सॉरी, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा. और यहाँ जो रेंज बनेगी h इक्वल टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g. दिस इज द हाइट. ठीक है, ये होगा. टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर बात करें तो इस केस में तो पहले आपको पता टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, 2u साइन थीटा बाई जी. और यहाँ जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा टी डैश, थीटा की जगह सिंपली 90 माइनस थीटा आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा. और टी डैश विल बिकम्स यू, दैट विल बिकम्स 2u कॉस थीटा अपॉन जी. ये है. तो लेट अस बेटर है, ये h है, इसको s डैश ना करके ये h1 लिख लेते हैं. दिस इज s2, दिस इज t1, दिस इज t2. जहाँ तक नीट की बात है तो वहाँ इतना टाइम नहीं कि आप करते रहें. इनमें एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है. क्या रिलेशन है, आप देखिए, देयर इज ए रिलेशन बिटवीन r h1 s2 और वो रिलेशन है r इक्वल टू 4 अंडर रूट h1 s2. इसको याद रखिए. मान लीजिए पहले आपने थीटा पे किया, रेंज है मैक्सिमम हाइट है 2 मीटर, फिर 90 माइनस थीटा किया, आपको मैक्सिमम हाइट आई है 8. तो व्हाट विल बी द रेंज, 4 इंटू अंडर रूट 2 इंटू 8 16, अंडर रूट 16 कितना होगा 4, रेंज बिकम्स 16. सेम अगर आर इक्वल टू डिफरेंट एंगल के लिए यहाँ से हम रेंज निकाल सकते हैं. सेम वे से ये हो गया आर इक्वल टू 4 अंडर रूट h1 s2. सेम वे से पहले वाले केस में टाइम ऑफ फ्लाइट t1 है, दूसरे में t2. सो देयर इज ए रिलेशन बिटवीन t1 t2 एंड r, एंड वो रिलेशन है t1 इंटू t2 इज इक्वल टू 2r अपॉन g. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन, पहले केस में टाइम पीरियड t1, दूसरे में t2. सो t1 इंटू t2 इक्वल टू 2r अपॉन g. इस तरीके से हम देख सकते हैं. और सिंपल जैसे अगर कहा जाए इनके बीच में क्या रिलेशन होता है आर और एच में, अगर हम थीटा पे ही बात करें तो याद रखिए एक रिलेशन होता है आर इक्वल टू 4s कॉट थीटा. ठीक है, आर इक्वल टू 4s कॉट थीटा. अगर कई बार ऐसा कहते हैं कि रेंज इज n टाइम्स द मैक्सिमम हाइट, तो आर की जगह क्या पुट कर देंगे, nh. आर की जगह nh पुट कर देंगे तो आर इज इक्वल टू ns 4s कॉट थीटा. और यहां से आ जाएगा n इक्वल n बाई 4 इक्वल टू कॉट थीटा. तो अंडरस्टूड है, tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा विल बी 4 बाई n. एंड व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना हो तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 4 बाई n. ये तो इस तरीके से कुछ रिजल्ट है जो बहुत ही हेल्पफुल होंगे. पहला रिजल्ट है r इक्वल टू 4 अंडर रूट h1 s2. दूसरा है t1 इंटू t2 इक्वल टू 2r अपॉन g. अगर थीटा की बात करें तो r इक्वल टू 4s कॉट थीटा है. इफ रेंज बिकम्स n टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट तो थीटा कितना होगा tan इनवर्स 4 अपॉन n.
जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया, इफ रेंज इज इक्वल टू द मैक्सिमम हाइट देन व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो रेंज मैक्सिमम हाइट के बराबर है, मतलब क्या हो गया, r इक्वल टू एस, तो n उस केस में क्या होगा 1, n 1 पुट कर दीजिए, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 4। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। Again, a body is projected with velocity u, making an angle theta with the horizontal. This is x, this is y. यहाँ हमें ये फाइंड करना होता है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। सवाल ये उठता है कि व्हाट इज मीन्स बाय इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मीन्स द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, क्योंकि पार्टिकल प्रोजेक्ट हुआ ओ से, स्ट्राइक हुआ ए से, तो ये एक्स वाई प्लेन में चल रहा है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लीजिए ये पी है और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई। द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज नोन एज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो यहाँ हम पहले x निकाल लेते हैं और y, और एक रिलेशन आ जाता है जिसका नाम क्या दिया जाता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो है that will be y equal to x tan theta minus gx square divided by 2u square cos square theta. This is the equation of trajectory. इसको फर्दर हम ऐसा लिख सकते हैं कि y equal to ax minus bx square। तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि a इक्वल टू हमारा क्या होगा, tan थीटा, और b इक्वल टू क्या है, g डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। मतलब मेरा ये है, अगर कोई भी इक्वेशन y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर की फॉर्मेट में है तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, प्रोजेक्टाइल मोशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर y इक्वल टू मैं कहूँ x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड है यहाँ a इक्वल टू क्या होगा 1 और b इक्वल टू भी क्या होगा 1। अगर हमें रेंज फाइंड करनी है, वी वांट टू फाइंड रेंज, तो जब पार्टिकल ए पे स्ट्राइक करेगा तो y क्या होगा, 0। फॉर फाइंडिंग रेंज आर y इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, 0। जब y की जगह 0 पुट करेंगे सो दिस कम्स आउट टू बी ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, और x इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा, a बाई बी, और इट इज इक्वल टू द रेंज। तो सिंपल, जब भी कोई क्वेश्चन दे रखी है रेंज फाइंड करना है तो आप y0 पुट कर दीजिए। जो मैंने कहा था, फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, यहीं पे अगर आपको कहा जाता व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, व्हाट इज द वेलोसिटी एट विच द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी भी और रेंज भी। देखते हैं, तीनों ही फाइंड करते हैं। y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इससे कंपेयर करेंगे तो a क्या हो गया 1, a 1 है, यही तो हमारी वैल्यू क्या है, tan थीटा। सो व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, 45। अब रेंज फाइंड करना है, y0 पुट कर दीजिए। जब y0 पुट करेंगे तो x की दो वैल्यू आएंगी, 0 और 1। रेंज 0 नहीं हो सकती, इसलिए रेंज वो वैल्यू क्या बनेगी 1, x इक्वल टू r, दैट विल बी 1 मीटर। अब सवाल उठता है कि व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। आप जब इससे इस इक्वेशन की कंपेयर करेंगे तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। जब b 1 आ जाएगा और b आपको पता है g डिवाइडेड बाई क्या है, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। आपने ऑलरेडी थीटा फाइंड किया, g tan ले लेंगे, u आ जाएगा, g इज tan डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45 इज इक्वल टू 1। कॉस 45 1 अपॉन रूट 2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 अपॉन यू स्क्वायर इक्वल टू 1, यू स्क्वायर इक्वल टू 10, तो u कितना आ जाएगा, रूट 10। सो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो याद रखिए, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, दैट इज y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। जब भी ये फॉर्मेट हो तो एक x का होगा, फिर माइनस एक्स स्क्वायर का टर्म्स होगा, ताकि ये पैराबोलिक इक्वेशन रिप्रेजेंट कर सके। अब हम कुछ इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर सकते हैं।
जो हमारे नीट एग्जाम में पूछी जा सकती है, इवन जेई मेंस में भी। एग्जाम्पल 1, again a particle is projected with velocity u, make an angle theta with the horizontal. So a particle is projected with velocity u, make an angle theta with the horizontal. हमें फाइंड करना what is the speed of the particle when it makes an angle phi with horizontal. देखिए, मान लेते हैं जब पार्टिकल यहाँ पे है तो उस समय इसके पास वेलोसिटी v है और हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना फाइंड बना रहा है, फाई। फिर से रिपीट कर देते हैं, क्या फाइंड करना है, क्या दिया गया है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u, मेक एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट मेक्स एन एंगल फाई विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, सो आपको ये पता है ये होगा u cos थीटा। जब ये हॉरिजॉन्टल से एंगल फाई बना रहा है उस समय मैंने स्पीड v मान ली, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, v cos फाई। अब हमें ये पता है थ्रू आउट द मोशन वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, सो दैट विल बिकम्स u cos थीटा इज इक्वल टू v cos फाई, और यहां से v कम्स आउट टू बी u cos थीटा sec फाई। So this is the speed of the particle when it makes an angle phi with the horizontal. देखिए एक अच्छा सा एग्जाम्पल है, नीट में बिल्कुल पूछा जा सकता है। और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 2, लेट्स द ट्रेजेक्ट्री दो पार्टिकल्स की दे रखी है। देखिए दिस इज फर्स्ट पार्टिकल एंड दिस इज सेकेंड। आप देखिए दोनों की रेंज सेम है। अगर दोनों की रेंज सेम है, आप देखिए इस केस में दोनों की हमने क्या की है, रेंज सेम है। तो पार्टिकल्स प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए, इसकी मैक्सिमम हाइट h1 है और दिस इज h2। अगर रेंज सेम है तो एक पार्टिकल अगर थीटा से प्रोजेक्ट हुआ फर्स्ट वाला, अगर ये θ1 से तो दूसरा क्या है θ2 से। ऐसे रेंज सेम है तो r1 इक्वल टू क्या है r2। यू नो अगर रेंज सेम है तो एक अगर थीटा तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ h1 अपॉन h2 अगर कहा जाए तो पहले वाले की अगर रेंज थीटा से है तो दूसरा किससे हो जाएगा 90 माइनस थीटा से। तो पहले वाले की हाइट हमें फाइंड करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h1 अपॉन h2, व्हाट इज द रेशियो ऑफ h1 अपॉन h2। तो पहले अगर थीटा से तो दूसरा किस पे 90 माइनस थीटा पे। पहले से जो रेंज मिलेगी h1 इक्वल टू क्या होता है, स्पीड सेम है दोनों की। सो u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1 डिवाइडेड बाई 2g, ये पहले की होगी। दूसरे से जो मैक्सिमम हाइट आएगी u स्क्वायर, यहाँ θ1 की जगह क्या आ जाएगा, पहले का थीटा मैंने कहा था तो दूसरे का कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर होगा सिंपल। यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई क्या होगा 2g। अब आप देखिए क्या फाइंड करना था, h1 अपॉन h2, दिस अपॉन दिस कर दीजिए। जब दिस अपॉन दिस करेंगे सो दैट विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, दैट विल बी tan स्क्वायर थीटा। So what is the ratio, h1 upon h2 comes out to be tan square theta. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन के, what is the ratio of h1 upon h2, that will be tan square theta.